Good morning, dear student. This is class 6th and I am Anjali Singh. Now, yesterday we took metals and non-metals. Yesterday topic was metals and non-metals. I explained you what are the metals and what are the non-metals with their properties, okay? With some examples also. And the most important, with some exceptions also. Now, today's topic is metalloids and inert gases. ठीक है, आज की क्या होगी हमारे टॉपिक में metalloids and inert gases. Metalloids means the element which is in between metals and non-metals. Metalloid means the element which is in between metals and non-metals. Sometimes it behaves like a metal and sometimes it behaves like a non-metal, like silicon, arsenic, antimony, germanium, silicon. These are the metalloids. ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? These are the मेटोलॉइड्स. तुम्हारी बुक में गिवन नहीं है, बट जब हायर क्लासेस में जाओगे तो उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ठीक है, पर अभी तुम इतना जानो, जो मेटोलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं. उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी होती है. उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ओके, जर्मेनियम. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटोलॉइड्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्ट गैसेस. Inert gases, actually they are gases, okay, elements which are gaseous in state. Inert gases means they are the element which are gaseous in state, means वो कैसे किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैसेस के फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? These elements not taking part in any chemical reaction. These elements not taking part in any chemical reaction, neither react with एनी एलिमेंट. मतलब ना ही ये किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, और ना ही ये रिएक्ट करते हैं, इनका रिएक्शन भी किसी के साथ नहीं होता, ये अपने आप में ही स्टेबल होते हैं. सो इनर्ट गैसेस आर लाइक अ स्टेबल एलिमेंट. Inert gases are like a stable element, okay, they are very stable, they are not taking part in any reaction and not reacting with other element also, like your helium, neon, xenon, krypton. Okay, these are the elements which behaves like a inert gases. क्लियर स्टूडेंट्स? पीरियोडिक टेबल में एक पूरा पार्ट दिया हुआ. अभी पीरियोडिक टेबल तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन जब पहुंचेंगे तो द होल पोर्शन मीन्स द एक्चुअली the one period is showing you about the inert gases. Now, symbols of element. Yes, important topic. Symbols of element means whatsoever element is present in the periodic table, every element having a unique symbol. जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है उन सबको क्या दिया हुआ है? एक यूनिक सिंबल दिया गया है. ठीक है, सो हियर आई कैटेगराइज इट इन 3 पार्ट्स. ओके, इनकी कैटेगराइजेशन मैंने 3 पार्ट्स में की हुई है. सो the first scientist who said about the symbol, that is Lavoisier. The first scientist who said about the symbol, that name is Lavoisier. Lavoisier has classified it in 3 parts. Okay, one is gaseous, one is gaseous, another is earth, and first is gaseous metal, second is earth, and third is metals, and another is नॉन मेटल्स. ठीक है, उन्होंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक तुम्हारा हो जाएगा गैसियस मेटल, इट इज गिवन इन बुक. अनदर इज अर्थ एलिमेंट, एंड अनदर इज मेटल्स, एंड द लास्ट इज नॉन मेटल. ये स्कीमा किसने बनाया था? लेवियोसियर ने. ठीक है, उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ठीक है, फिर आफ्टर दैट इट इज गोइंग लाइक दिस इज द करेक्ट मैनर, बट आफ्टर सम टाइम अनदर साइंटिस्ट केम एंड हिज नेम इज जॉन डाल्टन. ठीक है, इसके बाद कौन दूसरे साइंटिस्ट आ गए तुम्हारे? जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन ने क्या बोला? ही अगेन मॉडिफाइड दिस होल अरेंजमेंट which was previously made by the Lavoisier. ओके, अब उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, फिर उसके सिंबल को और इजी कर दिया. ठीक है, इसके सिंबल को उन्होंने और
इजी कर दिया. आफ्टर अ टाइम ऑल्सो अनदर साइंटिस्ट केम एंड हिज नेम इज बर्जीलियस. ओके, कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट आया, बर्जीलियस. ही ऑल्सो make it more and more easy and with a different type of symbols, which was not taken by the John Dalton and the Lavoisier. Okay, so actually we are also following the symbol pattern which was made by the Berzelius. ठीक है, तो अब उन्होंने तीन पार्ट में सिंबल्स को डिवाइड किया. तो फर्स्ट पार्ट इज द एलिमेंट which is showing with symbol of single element. ठीक है, लाइक हाइड्रोजन को H से शो किया, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फॉस्फोरस P, सल्फर S, आयोडीन I. ठीक है, इनको हमने सिंगल एलिमेंट से शो किया. ये तो तुम्हारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था. सेकेंड क्लासिफिकेशन में क्या किया उन्होंने, सम एलिमेंट्स which is similar like that but if हाइड्रोजन इज शोन बाय H तो हीलियम को भी H से नहीं शो कर सकते. सो उन्होंने क्या किया, अनदर डिफरेंट पैटर्न ही मेड. तो क्या था उसमें, हीलियम को हमने He से शो किया, मैग्नीशियम Mg से, एल्युमिनियम Al से, सिलिकॉन Si से. सिलिकॉन तुम्हारा क्या है, कौन सा एलिमेंट है, यस इट्स योर मेटलॉइड. ठीक है, क्लोरीन को Cl से, कैल्शियम को Ca से, मैंगनीज, रीडिंग पे ध्यान देना. ओके, इट्स अ मैंगनीज Mn, कोबाल्ट को Co से, जिंक को Zin, जिंक को Zn से. एंड द थर्ड कैटेगराइजेशन इज लैटिन नेम. ये बर्जीलियस ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी कि अब सम एलिमेंट्स आर नोन विद देयर लैटिन नेम. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को हम किससे पहचानेंगे, उसके लैटिन नेम से पहचानेंगे. तो ये कौन सी होगी, सोडियम. ना तो हम यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे एज अ सिंबल, ना तो 2 या 3 एलिमेंट लेंगे. हम उसको कैसे शो करेंगे, इसका सिंबल कैसा होगा, उसके लैटिन नेम पे होगा. तो सोडियम का देखो नेट्रियम है, तो नेट्रियम का मैंने Na ले लिया है. ठीक है, पोटेशियम का क्या है, कैलियम है. कैलियम का मैंने क्या ले लिया है, K ले लिया है. आयरन का क्या होता है, फीरम का मैंने Fe लिया है. नाउ नेक्स्ट दैट इज कॉपर का लैटिन नेम क्या है, कुप्रम को मैंने कुप्रम Cu से स्टार्ट था तो Cu लिया. सिल्वर का अर्जेंटम में कौन सा फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है, दैट इज Ag. नाउ लास्ट इज गोल्ड, ऑरम. ठीक है, ऑरम का मैंने क्या ले लिया है, Au. क्लियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल. उसको ठीक है, उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. नाउ अब इसके बाद हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखेंगे. पीरियोडिक टेबल यू कैन सी इन योर बुक, इन योर पीरियोडिक टेबल इट इज डिवाइडेड, it has periods as well as columns. Okay, so the horizontal rows, your horizontal rows, ये जो तुम्हारा horizontal rows है ये क्या हो गया तुम्हारा, periods. बुक में देखो 7 periods दिए हुए हैं. ठीक है, the horizontal rows is known as periods. Okay, it is 7 in numbers. Now another that is vertical columns. ये तुम्हारा horizontal हो गया, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा vertical column उसको. ठीक है, एक तुम्हारा horizontal rows हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा vertical columns. Vertical columns को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, this is known as groups. ठीक है, most important 2 points. एक है horizontal rows, okay, which is known as periods, 7 periods and 18 groups. It's a 7 period and 18 groups. So the horizontal rows is known as period. Vertical column दिख रहा होगा तुम लोगों को, that is known as groups. Now afterwards here in your book, elements starting from 1 to 20 is written with their specific symbol. ठीक है, पर 1 to 20 बहुत हो जाएगा, इतना तुम लोगों से भी याद नहीं होगा. So we will start with first 10 symbol. ठीक है, हम किससे स्टार्ट करेंगे आज, from first 10 symbol. अभी हम 20 तक हैं. Today's task is to complete up to 10 elements. So ये first element सबको याद होगा, that is hydrogen. First मैंने लिखा भी है, that is hydrogen. Second is helium. Okay.
ठीक है, तो योर फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज हीलियम, ठीक है, थर्ड इज लिथियम, फोर्थ इज बेरिलियम. ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो आज के लिए ये दिस इज योर होमवर्क. प्लीज रीड इट एंड लर्न इट. ओके, हाइड्रोजन को कैसे शो किया? विद द सिंबल H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम okay, berylium is shown with Be, boron with B, carbon is with C, nitrogen is with N, oxygen O, fluorine F, neon N. This is your homework. Okay student, these are the 10 element name with their specific symbol. Clear student? So this is all for today's video. Tomorrow I'll give you another 10 name. ठीक है, आज के लिए ये 10 नाम ही तुम्हारे लिए काफी है. इनको रीड करना, जैसे मैंने प्रोनाउंसिएट किया वैसे ही प्रोनाउंसिएट करना और इसके सिंबल्स याद कर लेना. ये जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल बहुत इजी है, क्योंकि वो जनरली किससे लिए हुए हैं? उनके फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट लेटर से लिए हुए हैं, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट लेटर से लिए हुए हैं. सो इट इज वेरी इजी. और ये जो तुम्हारा है, याद रखना लैटिन नेम से कौन सा, यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है जो हमने लैटिन नेम से लिया हुआ है. ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं. तो this is your homework. Learn up to 10 and from tomorrow I'll tell you another 10 as well as atomicity. Okay student? So this is all for today's video. Thank you.